انڈیا بھارت ایک واحد ایک ایسے ملک کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے جس کی ڈیموکریسی، جس کی جمہوریت کی پوری دنیا مثالیں دیتی ہے. الیکشن ہوتا ہے تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اور سب سے بڑا دنیا کا الیکشن ہوتا ہے، اور حکومت بن جاتی ہے اور بڑے آرام سے چلتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس ریجن کے تمام کنٹریز یہی سچویشن ہے جمہوریت کی، ڈاما ڈول ہوتی ہے، پھر ڈکٹیٹر پھر ہوتا ہے. لیکن انڈیا اپنے قدموں پر کھڑا ہے، جمہوریت بھی اپنے قدموں پر کھڑی ہے. سب سے بڑا جو ڈفرنس ہے وہ ہے لیڈرشپ. پہلے دن سے ہی انڈیا کو ایسی لیڈرشپ مل گئی تھی جو کہ انہوں نے، جس کو ایک فاؤنڈنگ فادرز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، وہ جس کنٹری کو مل جاتی ہے، جیسے امریکہ کو فاؤنڈنگ فادرز جو تھے وہ مل گئے تھے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن لکھی اور اسی کانسٹیٹیوشن کو سارے فالو کرتے ہیں. ایون اگر ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بھی فالو کرنا پڑ رہا تھا کانسٹیٹیوشن کو، کیونکہ اس سے بھی وہ نہیں ہٹ سکتے تھے، چاہے وہ جتنا بھی اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کہہ سکے. تو یہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن کی، سارے جو ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اور جب آپ پہلے دن سے ہی آپ کی جو اینٹ ہے نا وہ جب صحیح ہو جائے نا، تو اس کے اوپر آپ ایک جو فارسی کا محاورہ ہے نا کہ آپ اس کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے وہ عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. جب آپ کی پہلی اینٹ ہی مطلب غلط ہو جائے نا، تو اس کے بعد آپ اس پہ کوئی بڑی جو سٹرکچر ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. باقی جو کنٹریز ہیں اس میں اسی طرح سے ہو رہا ہے. اور انڈیا میں یہ ہے کہ مطلب پہلے دن سے ہی انہوں نے، کیونکہ آپ سویلین سپریمیسی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لارجلی جو ہے وہ انڈیا میں ان چیزوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے. لارجلی میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹلی، لیکن لارجلی اس کو فالو کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے مطلب اس میں ایشوز ہیں، بہت ایشوز ہیں انڈیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لارجلی جو ہے وہ لوگ انہی آئیڈیلز کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور ان آئیڈیلز کو فالو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو جب بھی اس میں آپ کی اپنی پرسنل انا اور پرسنل آپ کی اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر اس میں وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو چاہے اس میں ہو یہ جو ساؤتھ ایشین کے ریجن ہے، اس میں جو سب سے اگین بڑا مسئلہ ہے وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا بھی ہے. تو چاہے خالدہ ضیاء ہو، چاہے حسینہ واجد ہو، چاہے بھٹوز ہوں، چاہے شریفز ہوں، ٹھیک ہے، اور یا جو ہے یا نیپال میں اس طرح کی ڈائنیسٹیز ہیں، یا سری لنکا میں ہیں، یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے نا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں. اب کس نے ہائی جیک کیا؟ ان لوگوں نے جو کہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، جو کہ اپوزیشن میں تھے، اور جو کہ جو بنگلہ دیش نیشنل جو موومنٹ ہے اور جماعت اسلامی ہے، وہی لوگ تھے جو کہ اس کو انہوں نے ہائی جیک کر دیا. اور جب ایک مرتبہ ایک پروٹیسٹ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ آرمی کے کچھ لوگ جو تھے وہ بھی اسی کو سپورٹ کر رہے تھے، اسی پروٹیسٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ موومنٹ جو ہے وہ اس طرح سے سر یہ بات درست ہے، کیونکہ سر یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے نا کہ بنگلہ دیش کی آرمی کے اندر بھی اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ شامل تھے اس کو بیچ میں آگ لگانے میں. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب نقطہ. بغیر اس کے جو ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا، آرمی کے سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے جب وہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں ان کے کمانڈ کا بڑا حصہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یو اسٹینڈ ڈاؤن. ایکچولی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پولیس اسٹیشنز کو آگ لگائی گئی اور وہ عملہ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی، لیکن جو مین ایشو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک تقریباً 300 لوگ جو ہیں وہ اس وائلنس میں مارے گئے ہیں، اور ابھی جو اٹیکس شروع ہوئے ہیں وہ نہ صرف ہندوز اور باقی مائنورٹیز پر ہیں بلکہ وہ احمدیوں پر بھی ہیں. تو جیسے پاکستان میں احمدیوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں اسی طرح سے بنگلہ دیش میں بھی ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اٹیکس کون کر رہے ہیں اور کس سے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ تو یہی رہا ہے کہ جو سیکولر جو وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی حسینہ کی
पिछले 15 साल से, वो जाहिर है वो तो बिल्कुल मतलब कंप्लीटली खत्म हो गई है। और अभी जो लग इसी तरह है कि जिस तरह से एक अलायंस हो मिलिट्री और इस्लामिस्ट पार्टीज का, तो लग रहा है कि वो जो है उनको इस वक्त कंट्रोल दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो इंटरिम जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं यूनुस, जो कि पहले वो इकोनॉमिस्ट थे और नोबेल लॉरिये भी हैं, तो उनको जो है वो रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। लेकिन जब आपके आर्मी चीफ आके कह देते हैं कि जी मैंने या हमने जो है वो ये गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। होना चाहिए था कि किसी सिविलियन जो लीडर थे उसको कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते थे, वो कह देते, वो आके कह देते कि जी ये जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही है। लेकिन जब एक मिलिट्री बंदा आ जाता है और वो कह देता है कि ये हमने ये गवर्नमेंट बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड क्लोज डोर्स। बांग्लादेश में एक हिस्ट्री है वहां पे आर्मी की, और हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने उसको क्रश किया था और उनको जो है वो बैरक्स में बिठा दिया था। लेकिन ये है कि इस तरह के जो नई डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ये इश्यू डेफिनेटली होता है कि वहां पर जो है आर्मी को आप ज्यादा देर तक जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली यही हुआ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख ली कि ये एक अपॉर्चुनिटी है वहां पे हसीना को रिमूव करने के लिए। अगरचे उनकी उम्र जो है वो इस वक्त 77 ईयर्स है, और वो वैसे भी ये मेरे ख्याल में उसका लास्ट टर्म था। उसके बेटे की इंटरव्यू में सुन रहा था तो उसने कहा था कि वैसे भी ये उसका लास्ट टर्म था और उसके बाद जो है वैसे भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो जाहिर है उसको मतलब हटाने में कोई ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से लग रहा है कि ये पावर स्ट्रगल है, और अभी लग रहा है कि जो है वो आर्मी उसमें काफी हद तक, आर्मी और इस्लामिस्ट पार्टीज जो हैं वो काफी हद तक उसमें कामयाब हो गई हैं। ठीक, वो तो सही है सर कि वैसे भी वो लास्ट टर्म में उनकी थी और वो वैसे भी अब कह दिया उन्होंने कि वो वापस वहां पे नहीं जाएंगी। लेकिन वो जिस तरीके से हुआ, जो कुछ हुआ, क्योंकि देखिए ना, बांग्लादेश जिसने बनाया था उसके आप जो है वो स्टैचू गिरा रहे हैं, और शेख हसीना ने ये कहा कि जो कुछ भी किया है, लेकिन मैंने तो इसकी इकोनॉमी को, इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक किया, तो उसको तो मान लें। अच्छा सर, पाकिस्तानी क्यों इतने खुश हैं इस बात पर? क्या वो क्या समझ रहे हैं कि हमने बदला ले लिया? ये जो कुछ हुआ है वहां पे, जो सीन्स नजर आए हैं, इसलिए इतनी खुशियां हैं? पाकिस्तान में अपने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो तो गद्दार हैं सारे के सारे। बलोच भी गद्दार हैं, वो सारा दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं लेकिन वो गद्दार हैं। पश्तून सारा दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं, वो भी गद्दार हैं। ठीक है, सिंधी जो है वो जब आवाज उठाते हैं वो भी गद्दार हो जाते हैं। कश्मीरियों ने भी आवाज उठाया, वो भी गद्दार हो जाते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे मुल्क में इस तरह की मूवमेंट हो जाती है तो वो जो है वो, अगर अफगानिस्तान में होती है, तालिबान आ जाते हैं तो इस्लामाबाद में खुशियां मनाई जाती हैं। अगर अब ढाका में इस तरह हो गया है तो इस्लामाबाद में खुशियां मनाई जा रही हैं। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आती है कि किसी दूसरे के घर जब उजड़ जाता है तो आप लोग क्यों खुश होते हैं इसमें। आप अपना घर जो है वो पहले मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा ऑर्डर में ले आए, और उसके बाद जो है वो दूसरे के घर के जब उजड़ जाते हैं तो उस पर आप खुशियां मनाए आराम से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो इशू है उसके सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो एक्चुअली इंडिया होगा। इंडिया पे सबसे ज्यादा उसका असर होगा क्योंकि दे हैव अ डायरेक्ट बॉर्डर देयर एक्चुअली। उनके बंगाल के साथ उनका डायरेक्ट बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ तो कोई डायरेक्ट बॉर्डर सिरे से है ही नहीं है, और वो जो है वो मतलब पाकिस्तान से तो उन्होंने आजादी हासिल की थी। तो इस तरह जो ट्वीट्स में देख रहा था उससे तो यही लग रहा था कि जी शेख मुजीब जो थे वो गद्दार थे, और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तानी उस पर खुश हो रहे हैं कि जी उनसे बदला लिया गया है। बदला जो है उन्होंने शेख मुजीब से नहीं लिया है। शेख मुजीब जो है वो तो कब के जा चुके हैं, लेकिन ये है कि उसमें कोई बदले वाली बात सिरे से थे ही नहीं। ये बेसिकली एक डिसकंटेंट था, और ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत जारी था काफी दिनों से। और मतलब जाहिर है जब इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट और ये चीजें इस तरह हो जाती हैं तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जो है वो क्रिएट किया गया था। बेसिकली ये एक एग्जांपल है परफेक्ट स्टॉर्म की। एक परफेक्ट पॉलिटिकल स्टॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया, और उसकी वजह से क्योंकि जो है ये यंग डेमोक्रेसीज होती हैं और उसमें जो है वो कोई मतलब एस्टेब्लिश कोई तरीकाकार नहीं होता है, तो इसी वजह से अनसेरेमोनियस तरीके से जो है वो उसको हटाया गया।
दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और भारत के स्थिर लोकतंत्र के बीच अंतर साफ, जो दोनों देशों के भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की अस्थिरता की, तो इस समय बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। शेख हसीना की सरकार के खत्म होने के बाद से देश में अस्थिरता और हिंसा का माहौल बना हुआ है। सो कॉल्ड छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस प्रदर्शन ने जल्द ही एक बड़ा रूप ले लिया है, जिसमें सेना के कुछ हिस्सों का समर्थन भी इनको मिला है, जिसके बाद स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। खास तौर पर पुलिस थानों को आग लगाई जा रही है। इस्लामी समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और जो अहमदियां हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। उनके घरों को लगातार जलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मंदिर है उनको तोड़े जा रहे हैं। लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। और इन सब के बीच में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। महामारी के बाद से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। लोग बेरोजगार हो चुके थे, परेशान थे। लेकिन शेख हसीना ने ऐसे कई कदम उठाए थे जिससे बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश इस वक्त गड्ढे में जाकर गिर चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें भारत की, जिस तरह से आलिया शाह तुलना कर रही हैं भारत की, कि भारत की डेमोक्रेसी आप देखिए वो कितनी स्ट्रांग है। एक्चुअली भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा से मजबूती से रखा है। जब भारत को आज़ादी मिली तो एक ऐसी सरकार आई जिसने कहीं ना कहीं भारत को सजो कर रखा। यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, और जिसमें जनता का भी विश्वास होता है, और जो जनता का फैसला होता है वो सभी राजनीतिक दलों द्वारा मान्य होता है। भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि न्यायपालिका है, संसद है, कार्यपालिका है, ये सभी स्वतंत्र हैं। इन पर किसी चीज़ का दबाव नहीं होता, ना सरकार का होता है, ना आर्मी का होता है, जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में आप देखते आए हैं। और सरकार की जवाबदेही सबसे पहले तय होती है कि कोई भी अगर घटना होती है तो उस पर सरकार जिम्मेदार होती है, सरकार को उस पर जवाब देना होता है।